Namaste everyone. Abhyuday Vidyasli online classes welcomes to you. Today I am going to explain you chapter 3 of class 6th section 1. Young uncle goes to his village. Okay, so first we'll see the characters of this story. First, young uncle, the main character of this story. Then ancient uncle, young uncle's father's uncle, that is ancient uncle. Then Yusuf, young uncle's friend. Then children, Sarita, Ravi and the baby. These are the niece and nephew of young uncle. Okay, so let's read. This extract is from Young Uncle Comes to Town, a delightful book by Vandana Singh. Okay, this is the extract from the book Young Uncle Comes to Town. ये जो एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, एक बुक है यंग अंकल कम्स टू टाउन, इसका एक एक्सट्रैक्ट है यहाँ पर, ठीक, विच इज रिटन बाय वंदना सिंह. Young uncle, the younger brother of the children's Sarita, Ravi and the baby father, is an unusual person who finds a unique and hilarious solution to any problem that he faces. Read about his preparation for a visit to his great uncle's village. Okay, so यहाँ पर जो ये young uncle है, वो जो चिल्ड्रन है सरिता, रवि और द बेबी, इनके फादर के ब्रदर है. ओके, सो यंग अंकल यहाँ पर एक ट्रिप पर जाते हैं. मीन्स उनके जो ओल्ड विलेज होता है जहाँ पर वो पहले रहते थे, उस विलेज में जाते हैं. तो उससे पहले वो क्या प्रिपरेशन करते हैं, इस चैप्टर में वही बताया है. Okay. Summer had been washed away by the monsoons, and after a month of steady rain, the clouds receded to make way for the cooler season. Okay, summer has gone, and the monsoon is also going. जो समर है वो समर सीजन खत्म हो चुका था, और जो मानसून था वो भी खत्म होने वाला था, और किसकी शुरुआत होने वाली है, विंटर सीजन की स्टार्टिंग होने वाली थी. Young uncle began planning another trip, this time to his father's village where he had spent some memorable summers as a schoolboy. So यहाँ पर जो young uncle है, he loves traveling, उनको traveling करना बहुत ज़्यादा पसंद है. So he was planning another trip, means वो एक another trip के लिए plan कर रहे थे. Okay, और this time वो कहाँ जाने वाले थे, his father's village, उनके जो पापा का जो village था वहाँ जाने वाले थे. उन्होंने वहाँ पर अपने childhood days काफ़ी spend किए थे in summers. Okay, most of his family had moved out of the ancestral village home, but two of his oldest relatives still lived in the village. मीन्स जो यंग अंकल है उनके काफ़ी जितने भी रिलेटिव्स थे, फैमिली रिलेटिव्स जो थे, वो वहाँ से में शिफ्ट हो चुके. कोई टाउन में शिफ्ट हो गया, कोई बिग सिटीज़ में शिफ्ट हो गया, सभी लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए थे. बट अभी भी वहाँ पर उनके जो टू रिलेटिव्स है वो अभी भी उस विलेज में रहते थे. एंड दिस वर एंशियंट अंकल एंड हिज वाइफ एंशियंट आंटी. सो वो वहाँ पर कौन दो लोग रहते थे, उनके एंशियंट अंकल अभी भी वहाँ रह रहे हैं, और उनकी वाइफ एंशियंट आंट. Ancient uncle was young uncle's great uncle, but most people called him ancient uncle because he was very old. So miss उनको ancient uncle क्यों कहते हैं, ancient uncle इसलिए कहते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थे. सारे जो विलेजर्स होते हैं वो उनको एंशियंट अंकल के नाम से बुलाते थे. Whenever they mentioned him, they would say, "Oh, ancient uncle." They shake their heads because he often did behave like a dignified old man of 88. Miss जब भी उनकी बात होती है, so सभी इस टाइप से रिएक्शन देते हैं कि ओ वो एंशियंट अंकल, और फिर सर हिला दिया करते हैं. वो मिस उनकी एज जो थी वो 88 ईयर्स ओल्ड थे, 88 ईयर्स ओल्ड थे. इंस्टेड ऑफ दैट मिस वो बिहेव ऐसे जैसे नॉर्मल पर्सन जो करते हैं उस टाइप से बिहेव करते थे. वो ऐसा शो नहीं करते कि उनकी एज 88 है, काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं. ओके, इन फैक्ट सरिता's लास्ट मेमोरी ऑफ हिम ड्यूरिंग वन ऑफ हिज रेयर विजिट टू देयर टाउन इन्वॉल्व्ड क्राउडिंग with him on hands and knees under the dining table to scare the dinner guests. सो मीन्स यहाँ पर सरिता की बात हो रही है. सरिता जो कि नीस है यंग अंकल की. सो अंकल मेमोरी मीन्स रिकॉल कर रहे थे उस ओल्ड मेमोरी की कि जब सरिता घुटने घुटने चलती थी तब वो मिस लास्ट टाइम विजिट के लिए वो वहाँ पर तब गए थे. Okay, ancient uncle had horses
horses and cows, and there were plenty of family stories about their exploits. Exploits, the meaning of exploits is exciting and interesting adventures. जो यंग अंकल है उनके पास हॉर्सेस काउस के अलावा हमें हमेशा बहुत सारी स्टोरीज रहती थी, एडवेंचरस स्टोरीज रहती थी जो कि वो हमेशा सुनाते हैं. The children really wanted to go with young uncle to see their legendary relative, but their mother put her foot down. So means जो children थे they also wanted to go with young uncle. वो भी young uncle के साथ जाना चाहते थे विलेज में, but जो मदर थी सरिता रवि एंड द बेबीज, जो मदर थी उनकी, उन्होंने उन्हें मना कर दिया that no you can't go there. What, go see ancient uncle without me to keep you all out of mischief? Certainly not. So what did the mother say? That what, go see ancient uncle without me means तुम मेरे बिना ancient uncle से मिलने कैसे जाओगे, means तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, like this. तो उन्होंने मना कर दिया था. मीन्स अगर तुम तीनों मिल जाओगे जैसे चिल्ड्रन, एंशिएंट अंकल और यंग अंकल, तो काफी ज्यादा मिस्चिफ करोगे, मस्ती करोगे. सो उन्होंने उन्हें मना कर दिया था बच्चों को. बट यंग अंकल विल बी देयर सैड रवि. सो रवि कहता है कि यंग अंकल तो होंगे ना हमारे साथ, लाइक दिस. यंग अंकल प्लस एंशिएंट अंकल मीन्स इवन मोर ट्रबल, देयर मदर सैड ग्रीमली. एंड व्हाट अबाउट स्कूल? सो हियर मदर सैड, मदर कहती है दैट यंग अंकल प्लस एंशिएंट अंकल मीन्स दोनों मिल जाएंगे तो काफी ज्यादा मस्ती होगी, और फिर तुम्हारे स्कूल्स भी तो है, तुम्हारे स्कूल्स का क्या होगा. The children were disappointed, और चिल्ड्रन जो थे वो थोड़े से अपसेट हो गए थे. Young uncle reminded them that this trip would bear fruit in new stories, but they wouldn't smile. यंग अंकल ने बताया कि मैं वहां जा रहा हूँ तो इतना भी कोई बेनिफिशियल नहीं होगा, फिर भी वो बच्चे अपसेट थे, उनके चेहरे पर कोई भी स्माइल नहीं आई. He told them three hair-raising old stories about the demon Gobarmal, which cheered them up only a little. So जो यंग अंकल थे उन्होंने उनका मिस जो माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्हें एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया, डीमन स्टोरी अबाउट गोबरमल. उससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे. This was surprising because the Gobarmal stories were part of the family tradition and the children loved being terrified by them. So जो यंग अंकल थे काफी शॉक हुए, मीन्स वो इतनी जो डीमन गोबरमल काफी फेमस स्टोरी थी उस टाइम की, मीन्स उनकी फैमिली में हर कोई वो स्टोरी सुनाता था बच्चों को डराने के लिए, मीन्स थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए. बट जो बच्चे थे वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे. व्हाट लॉन्ग फेसेस सैड young uncle said finally, all right, never mind Gobarmal and his seven eyes. So young uncle ने कहा कि तुम ऐसा क्यों फेस बना रहे हो, मतलब मैं अच्छी स्टोरी बता रहा हूँ उसके बावजूद तुम लोग ऐसा फेस बना रहे हो. ओके ठीक है, गोबरमल को छोड़ो, इस टाइप से वो कहते हैं. टेल मी व्हाट यू वांट फ्रॉम द विलेज अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल फाइन क्रॉप ऑफ टॉल टेल्स एंड आई विल बी श्योर टू ब्रिंग इट फॉर यू. सो यंग अंकल उनसे कहते हैं चलो ठीक है छोड़ो कोई ये स्टोरीज वगैरह, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए विलेज से क्या लेकर आऊँ, मैं वहां से मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, तुम जो कहोगे मैं वो ला कर दूंगा, लाइक दिस. The two older children looked happier. They decided they wanted mangoes more than anything because the village mangoes were the best in the known universe. So मीन्स दो चिल्ड्रन थे सरिता एंड रवि, वो खुश हो जाते हैं अंकल जैसे ही कहते हैं कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं विलेज से लेकर आऊंगा तुम लोगों के लिए. सो सरिता और रवि काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो डिमांड करते दैट दे वांट मैंगोज, मतलब उनको मैंगोज चाहिए क्योंकि वहाँ विलेज के जो मैंगोज थे काफी ज्यादा फेमस थे. Okay, they grew only in special groves near the village and were large, golden, luscious and ambrosious, enough to inspire poetry in the most ferocious soul. But the baby, being more ambitious than her siblings, wasn't satisfied with mere food. She frowned and pondered. So यहाँ पर मीन्स जैसे वो बच्चे कहते हैं हमें मैंगोज चाहिए, वहाँ के जो मैंगोज थे काफ़ी ज़्यादा मीन्स जूसी रहते, काफ़ी फेमस रहते वो. ओके मीन्स हर कोई उन्हें बहुत पसंद करता है. बट जो बेबी था मीन्स जो बेबी था उसको मतलब वो खुश नहीं थी, उसको मैंगोज वगैरह नहीं चाहिए थे, उसको कुछ और चाहिए थे, कुछ और चीज़ चाहिए थी उसको. द नेक्स्ट डे यूसुफ अंकल्स फ्रेंड the next day young uncle's friend Yusuf came
visit. So next day कौन मिलने आता है young uncle से? His friend Yusuf. He was a wildlife expert who could make the most amazing animal noises and he always liked to entertain the children. और जो यूसुफ अंकल थे वो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे और वो जानवरों की आवाज़ें निकालकर मीन्स बच्चों को काफ़ी इंटरटेन किया करते थे. This time he bought them a picture book full of all kinds of animal. और इस बार वो बच्चों के लिए क्या लाए थे? He brought a book for them which is full of animals. I am very worried about the Neelamgiri National Sanctuary, he said. It is a small protected forest, one of the last resort of Indian tiger. But each forest ranger I appointed to look after, he leaves after a week or so and will not tell me why. So here जो अंकल यूसुफ है वो बताते हैं कि उनकी जो उनकी जो नेशनल सेंचुरी थी नीलमगिरी नेशनल सेंचुरी उन्हें लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उन्होंने जो वर्कर्स अपॉइंट किए थे, ठीक है, जो रेंजर्स अपॉइंट किए थे वो उन्होंने मिस छोड़ दिया, मतलब वहाँ से जॉब क्विट कर दी और बिना 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 रीज़न बताया उन्होंने वहाँ से वो जॉब क्विट कर दी. सो काफ़ी ज़्यादा वरीड थे उसे लेकर. I don't know what the trouble is and unfortunately I don't have time to visit Nilamgiri. So यूसुफ कहते हैं कि मतलब मेरे पास टाइम नहीं है वहाँ जाकर देखने के लिए, तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, कैसे चल रहा होगा. Okay, but listen, it's not too far from your village. Could you look into it for me, my friend? So he requested to young uncle that क्या तुम मेरे लिए वहाँ जाओगे क्योंकि तुम्हारे विलेज से वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्या तुम मेरे लिए वहाँ जाकर देख सकते हो? He asked to Yusuf. Sorry, young uncle. Young uncle enthusiastically agreed. Later, when he was showing the baby the animal book, she pointed at the picture of a tiger reposing royally in a forest clearing. So, अंकल जो यंग अंकल रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मीन्स उनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होता है, तो वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं उसके लिए और एग्री करते हैं. और इसके बाद में जब यंग अंकल वो बेबी जो रहता है, बेबी उसको पिक्चर बुक जो लाकर दी थी वो दिखाते हैं, तो वो जो बेबी होती है उसने एक टाइगर पर पॉइंट किया होता है. शी सैड. सो वो क्या कहती है? दे मीन्स वो ऐसा फिंगर रखती है उस पर और कहती है मुझे ये चाहिए, दे. अब वो एक बेबी रहती, छोटी रहती, तो वो बोल नहीं पाती, क्लियर वर्ड्स नहीं बोल पाती थी, तो वो इस टाइप से पॉइंटेड करती, इशारा करती है और बोलने की कोशिश करती है. I can't bring you a whole tiger, young uncle said. They won't allow him on the bus. So जैसे वो पॉइंट करती है तो फिर यंग अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए होल टाइगर मीन्स टाइगर तो नहीं ला सकता हूँ क्योंकि जो बस रहती है उसमें अलाउड नहीं है टाइगर्स लाना, वो उसको इस टाइप से कहते हैं. द बेबी पॉइंटेड द टाइगर्स टेल. सो फिर बाद में बेबी क्या करती है? उस टाइगर टेल को पॉइंट करती है कि मिस मुझे टाइगर टेल चाहिए, लाइक दिस. दे शी सैड मिस वो टाइगर टेल को पॉइंट करके कहती है कि मुझे टाइगर टेल चाहिए. आई कांट ब्रिंग यू टाइगर्स टेल ईदर, यंग अंकल सैड. द टाइगर माइट ऑब्जेक्ट. सो फिर यंग अंकल फिर से उसको कहते हैं कि मिस मैं टाइगर टेल तो नहीं ला सकता हूँ क्योंकि टाइगर को ऑब्जेक्ट होगा, मिस वो ऑब्जेक्शन लेगा मैं अगर उसकी टेल लेकर आऊँगा, लाइक दिस. द बेबी लुक्ड इम्पैशेंट. Then she pointed to the very tip of the tiger's tail. So बेबी अब थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, ऐसा अपसेट सा फेस बना लेती है और फिर वो कहाँ पर पॉइंट कर देती है? जो टाइगर टेल की जो टिप रहती है, सपोज दिस इज टाइगर टेल, और ये टिप जो रहती है वहाँ पर पॉइंट करती है कि उसे ये चाहिए. A hair from the tip of the tiger's tail. Well, I will try my best, promised young uncle. He didn't know how he was going to do it, especially if the hair was still attached to the tiger, but a promise was a promise. So जैसे वो बेबी टाइगर्स टेल की टिप पे पॉइंट करती है तो जो यंग अंकल रहते हैं वो कहते हैं, वो मिस प्रॉमिस करते हैं, ओके ठीक है मैं ये लेकर आऊँगा, बट वो खुद भी नहीं जानते थे कि वो ऐसा कैसे करेंगे. So 2 days later, young uncle waved goodbye to his brother and sister-in-law and the 3 children and took a rickshaw to the bus stand. So after 2 days means 2 दिन के बाद जो यंग अंकल रहते हैं वो फाइनली अपने विलेज की ओर निकलते हैं. वो एक रिक्शा लेते हैं, रिक्शा से बस स्टैंड जाते हैं और अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं उनके विलेज के लिए. ओके, सो हियर द स्टोरी. आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो.